نگران پنجاب حکومت نے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا معطل کر دی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پنجاب حکومت کو سزا معطل کرنے کی درخواست کی تھی۔ سابق وزیر اعظم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سزا معطل کرنے کی درخواست دی۔ نگران پنجاب کابینہ نے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی سزا معطل کرنے کی منظوری دے دی۔ کرمنل پروسیجر کوڈ سیکشن 401 کے تحت حکومت مجرم کی سزا معطل کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے احتساب عدالت میں سرنڈر کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف کی توشہ خانہ کیس ضمانت منظور کر لی۔ جج محمد بشیر نے نواز شریف کو جانے کی اجازت بھی دے دی، جس پر نواز شریف عدالت سے روانہ ہو گئے۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت مسلسل جاری، جس پر دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 320 مقامات کو نشانہ بنایا، جس سے مزید 400 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ صہیونی فورسز کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے۔ رفح شہر پر اسرائیل نے ایک اور فضائی حملہ کیا، جس میں 18 معصوم فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے 24 گھنٹوں میں 324 مقامات کو نشانہ بنایا، جن میں 400 سے زائد بے گناہ فلسطینی شہید ہوئے۔ سپریم کورٹ میں ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس امین الدین شامل ہوں گے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات سے مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کی تجویز دی تھی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ نیب میں ہونے والی ناانصافی کی نظیر عدالتی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کراچی نیب کورٹ میں پیش ہوئے، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران ان کا کہنا تھا کہ نیب کا کام سیاست کو توڑنے اور جوڑنے کا ہے۔ انصاف کا تقاضا اور انصاف کہاں گیا یہ کسی کو نظر نہیں آتا، یہ بدنصیبی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور پرائم سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ پروجیکٹ کا دورہ کیا، تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ سے والٹن روڈ تک تعمیر ہونے والی سڑک کا معائنہ کیا، پروجیکٹ پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ والٹن ریلوے ٹریک پر اوور ہیڈ برج پروجیکٹ کا تعمیراتی کام جلد از جلد شروع کرنے کی ہدایت بھی کی۔ محسن نقوی نے پل کی سائٹ تک جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ مالی بحران سے جڑا ایندھن کا مسئلہ تاحال برقرار ہے۔ آج بھی پی آئی کی 30 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی۔ کراچی سے اسلام آباد کی 4 دو طرفہ، کراچی سے تربت کی 2 اور لاہور کی 3 پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ اس طرح کراچی سے سکھر اور کراچی سے کوئٹہ کی 2 طرفہ، جبکہ دمام سے کراچی کی پرواز بھی منسوخ ہو چکی۔ فلائٹ شیڈیول کے مطابق لاہور سے کوئٹہ کی 2، اسلام آباد سے دبئی کی 2 اور وفاقی دارالحکومت سے بھی ابوظہبی کے لیے 2 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ آج صبح کاروبار کے آغاز میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر سستا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا ہونے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 269 روپے کا ہو گیا۔
गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम में इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए 12 पैसे का था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का मनफी रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 220 पॉइंट्स कम होने के बाद भी 50,850 पर आ गया। आईसीसी वर्ल्ड कप के 22वें मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। चीनी के पीछे दम्बरम स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 283 रन का हदफ दिया था, जो अफगानिस्तान ने 49वें ओवर में हासिल कर लिया। हदफ के ताकुब में अफगान टीम ने भी शानदार आगाज किया, जहां ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने पाकिस्तानी बॉलर्स की एक न चलने दी। अफगान बैटर्स ने बिला खौफ रन बनाने का सिलसिला शुरू किया और 130 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मैच खत्म होने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक काबुल में जश्न के तौर पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी का सिलसिला जारी रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अलीना मुजफ्फर और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, ब्रिटेन का बकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर आज समाअत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एवनफील्ड अल अज़ीज़िया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी खुसूसी बेंच में शामिल हैं। अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्तों पर कोई एतराज नहीं लगाया गया। अदालत में जमा करवाई गई दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को गैर हाजिरी में सजा सुनाई थी। पिटिशंस की अहलिया लंदन में ज़ेरे इलाज और वेंटिलेटर पर थी। फैसला सुनाने के ऐलान में तख़रीर की इस्तदा की जो मंजूर न हो सकी। नवाज शरीफ सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके। निगरान पंजाब हुकूमत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी। साबिक वजीर आजम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त दी थी। निगरान पंजाब काबीना ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने की मंजूरी दी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 401 के तहत हुकूमत मुजरिम की सजा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा कैसे मुअत्तल हुई, दुनिया न्यूज ने तफसीलात भी हासिल कर ली है। कायद मुस्लिम लीग नून की जानिब से निगरान पंजाब काबीना को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त भी दी गई थी। निगरान पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर वीडियो लिंक के जरिए समाअत की। वीडियो लिंक पर नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर ताड़ड़ और अमजद परवेज ने दलाइल भी दिए। निगरान पंजाब काबीना के हमरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ के बुकला की दरख्वास्त मुतफ़िका तौर पर मंजूर करते हुए सजा मुअत्तल कर दी है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए। नवाज शरीफ के हमरा एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी समेत दीगर नून लीगी रहनुमा और बुकला की टीम भी थी। अदालत में नवाज शरीफ के जमानती के तौर पर नून लीगी रहनुमा
तारिक फजल चौधरी को मुकर्रर किया गया। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ने सियासी दलाल देने की कोशिश की, जिस पर एहतसाब अदालत के जज वकील काजी मिसबा को सियासी दलाल देने से रोक दिया गया। अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर करते हुए 10 लाख के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। बाद में एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दिया। आइंदा समाअत पर नकूल तकसीम की जाएंगी। अलावा अजीम जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 20 नवंबर को दलाइल तलब कर लिए। इससे कबल नवाज शरीफ की जानिब से उनके वकील अदालत में पेश हुए, जिन्होंने इस्तदा की कि बाकी रूटीन के केसेस सुन ले, हमें वक्त दिया जाए। इस पर अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1 से 1:30 बजे तक का वक्त दिया था। तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर नकुल तकसीम की जाएंगी। जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। 20 नवंबर को जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर दलाइल भी तलब कर लिए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात बता रही हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारी नुमाइंदा सोनिया मलिक। जी सोनिया, आगाह कीजिएगा। जी, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पेश होने के लिए एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 1 से 1:30 बजे का वक्त दिया था, जिस पर आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है एहतसाब अदालत पेश हुए और नवाज शरीफ की 3 दरख्वास्तों पर समाअत हुई और नवाज शरीफ के प्लीडर मोहम्मद इरफान कमरे अदालत में पेश हुए और नवाज शरीफ को 10 लाख रुपए जमानती मछली को जमा करवाने की हिदायत भी की गई, जिस पर नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने 10 लाख रुपए मचल के अदालत में जमा करवा दिए और तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई और आइंदा समाअत पर नकुल तकसीम किए जाएंगे। अदालत की जानिब से ये बोला गया और जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस भी जारी कर दिए गए, जिस पर 20 नवंबर को जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब किए जाएंगे उनसे। जी बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक, आप अपडेट कर रही थी। मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली जारहियत मुसलसल जारी है, जिस पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 320 मकामात को निशाना बनाया गया, जिससे मजीद 400 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सियानी फोर्सेस की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कशी का सिलसिला जारी है। रफा शहर पर इसराइल ने एक और फ़ज़ाई हमला किया, जिसमें 18 मासूम फलस्तीनी शहीद हो चुके। सियानी फोर्सेस ने 24 घंटों में 324 मकामात को निशाना बनाया, जिनमें 400 से ज़ायद बेगुनाह फलस्तीनी शहीद हुए हैं। इसराइली जारहियत से शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 5000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 15,000 से जायद जख्मी और 1,850 शहरी लापता भी हैं। इसराइल गजा में पनाह गुज़ीन कैंप, अस्पताल, मसाजिद और घरों को मसमार कर रहा है। हमलों में अक़वाम मुत्तहिदा के 13 एहलकार भी मारे जा चुके हैं, जबकि मगरबी किनारे में छापों पर डॉक्टर समेत 7 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल ने शमाली गजा में अस्पतालों को खाली करने की धमकी देते हुए कहा है, अस्पताल खाली ना किए तो बमबारी करेंगे। दूसरी जानिब हमास का दावा है कि इसराइली फौज की गजा में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बनाते हुए जमीनी हमले को पसबा कर दिया गया। झड़प में इसराइल का एक टैंक और 2 बुलडोजर भी तबाह हुए हैं। सरहदी इलाके खान यूनिस के करीब जमीनी हमले के पसपाई के बाद सहवानी फौजी अपनी गाड़ियां छोड़कर फरार भी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी हुकाम ने एतराफ किया कि एक टैंक ने गलती से गजा की पट्टी के बाहर मिस्री पोजीशन को निशाना बनाया। इसराइली फौज गजा और इसराइल के दरमियान आहनी बाढ़ की मुरम्मत के लिए जाना चाहती थी कि इसराइली फौज का टैंक फलस्तीनियों के नरगे में आ गया और इसराइली फौज फायरिंग की जद में आकर टैंक छोड़कर भागने पर मजबूर भी हो गई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब में होने वाली नाइंसाफ़ी की नज़ीर अदालती तारीख में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कराची नैब कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नैब का काम सियासत को तोड़ने और जोड़ने का है। इंसाफ का तकाजा और इंसाफ कहाँ गया,
یہ کسی کو نظر نہیں آتا. یہ بدنصیبی ہے جو یہاں ناانصافی ہوتی ہے اس کی نظیر عدالتی تاریخ میں نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نیب نے ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے. آج یہ 5واں سال ہے کہ کیس چل رہا ہے. بار بار عدالت آتے ہیں لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں. 5 سال ہو گئے ہیں لیکن صرف تاریخ ملتی ہے. عدالتوں میں کیمرے لگوائے جائیں تاکہ عوام بھی دیکھے کہ عدالتوں میں ہوتا کیا ہے. شاہد خاقان عباسی کا مزید کہنا تھا کہ کئی ججز کا عدالتوں سے تبادلہ ہو گیا لیکن ہمارا کیس وہیں کا وہیں ہے. نیب کا ادارہ صرف سیاست کی جوڑ توڑ کے لیے رکھا گیا ہے. میری اپیل ہے کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دیا جائے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی نے لاہور پرائم سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ پروجیکٹ کا خود دورہ کیا. تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ سے والٹن روڈ تک تعمیر ہونے والی سڑک کا معائنہ بھی کیا. پروجیکٹ پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا اور والٹن ریلوے ٹریک پر اوور ہیڈ برج پروجیکٹ کا تعمیراتی کام جلد از جلد شروع کرنے کی ہدایات بھی کی. محسن نقوی نے پل کی سائٹ تک جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا مشاہدہ بھی کیا. محسن نقوی نے والٹن اوور ہیڈ برج پروجیکٹ کو فاسٹ ٹریک پر مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر سی بی ڈی پنجاب عمران امین نے قائد ڈسٹرکٹ پروجیکٹ پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریف کیا. بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ لاہور پرائم سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ کے انفراسٹرکچر کا کام رواں ماہ میں مکمل ہو جائے گا. منصوبے کے انفراسٹرکچر میں روڈ ورک، سیوریج، پانی، بجلی اور مواصلات کا نظام شامل ہے. پروجیکٹ میں گرین ایریا کے لیے یکساں جگہ دی گئی ہے. دوران بریفنگ مزید بتایا گیا کہ سی بی ٹی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ تا والٹن روڈ کل لمبائی 4.2 کلومیٹر ہے اور اس میں بلیو روڈ ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے. سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ تا والٹن روڈ سگنل فری کوریڈور ہوگا جس میں 3 لینز اور 1 فلائی اوور بھی شامل ہے. پروجیکٹ سب بیس مکمل ہو گئی ہے جبکہ والٹن فلائی اوور کا پائل لوڈ بھی ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا ہے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ لاہور کی ترقی کو نئی سمت دے گا. سینیٹر پوائنٹ کو والٹن روڈ سے منسلک کرنے سے فاصلہ 3 منٹ میں طے بھی ہو جائے گا. آپ کو بتائیں کہ سی بی ڈی کا پورا پروجیکٹ مکمل ہونے سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری آئے گی. صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، سیکرٹری ہاؤسنگ سیکرٹری اطلاعات سی سی پی او این ایل سی کے حکام، ڈپٹی کمشنر چیف ایگزیکٹو آفیسر سی بی ڈی، چیف آپریٹنگ آفیسر سی بی ڈی بریگیڈیئر ریٹائرڈ منصور اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے. آپ کو بتاتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور پرائم سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ پروجیکٹ کا دورہ کیا اور تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ہے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ سے والٹن روڈ تک تعمیر ہونے والی سڑک کا معائنہ کیا. پروجیکٹ پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا گیا اور والٹن ریلوے ٹریک پر اوور ہیڈ برج پروجیکٹ کا بھی تعمیراتی کام جلد از جلد شروع کرنے کی ہدایات. محسن نقوی نے پل کی سائٹ تک جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا. محسن نقوی نے والٹن اوور ہیڈ برج پروجیکٹ کو فاسٹ ٹریک پر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر سی بی ڈی پنجاب عمران امین نے قائد ڈسٹرکٹ پروجیکٹ پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریف کیا. بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ لاہور پرائم سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ کے انفراسٹرکچر کا کام رواں ماہ میں مکمل ہو جائے گا. مزید تفصیلات کے مطابق منصوبے کے انفراسٹرکچر میں روڈ ورک، سیوریج، پانی، بجلی اور مواصلات کا نظام شامل ہے. پروجیکٹ میں گرین ایریا کے لیے یکساں جگہ دی جائے گی. دوران بریفنگ مزید بتایا گیا کہ سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ تا والٹن روڈ کل لمبائی 4.2 کلومیٹر ہے اور اس میں بلیو روڈ ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے. سی بی ڈی پنجاب قائد ڈسٹرکٹ تا والٹن روڈ سگنل فری کوریڈور ہوگا جس میں 3 لینز اور 1 فلائی اوور شامل. پروجیکٹ سب بیس مکمل ہو گئی ہے جبکہ والٹن فلائی اوور کا پائل لوڈ بھی ٹیسٹ مکمل کر لیا گیا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ یہ منصوبہ لاہور کی ترقی کو نئی سمت دے گا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کی گئی. تفصیلات بتا رہی ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود سونیا ملک. جی سونیا بتائیے گا کیا تفصیلات بتائی گئی ہیں اجلاس کے حوالے سے؟
جی آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور پیپلز پارٹی کے اجلاس کی صدارت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کریں گے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اجلاس میں 30 نومبر کو لاہور میں ہونے والے جلسے سے متعلق بھی مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اجلاس میں ملک میں عام انتخابات سے متعلق مشاورت بھی کی جائے گی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اجلاس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کے بعد جو ملک میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ سونیا ملک، آپ اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ہاکی ایشیا کپ اور ورلڈ کپ جیتنے والے سابق کپتان پاکستان ہاکی ٹیم صلاح الدین صدیقی کی ملاقات ہوئی۔ صلاح الدین صدیقی نے وزیر اعظم کو اپنی سوانح عمری ڈیش تھرو مائی لائف پیش کی۔ وزیر اعظم اور صلاح الدین صدیقی کے درمیان پاکستان میں ہاکی کی موجودہ صورتحال، اس کی بحالی اور فروغ کے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ ہاکی لیجنڈ صلاح الدین صدیقی نے گزشتہ شب ہاکی چیمپئن شپ کے اختتامی میچ میں وزیر اعظم کی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صلاح الدین صدیقی نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی پر وزیر اعظم کی خصوصی تعریف بھی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی ہاکی ٹیم نے کئی دہائیوں تک ہاکی کے میدانوں میں ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے۔ قومی کھیل ہاکی کی پاکستان میں موجودہ صورتحال تشویشناک ہے۔ آپ کا ووٹ پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ووٹ کے اندراج، منتقلی، درستگی اور اخراج میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹر لسٹ میں نام اندراج اور قوائف درستی کی آخری تاریخ 25 اکتوبر ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے راشد محمود الیکشن کمیشن کے آفس میں موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی راشد، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ہری پور میں۔ ہری پور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، شوکت حسین صاحب۔ ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ووٹ کی منتقلی، رجسٹریشن کے لیے یہ عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہدایت کے مطابق 25 اکتوبر تک تمام لوگ، وہ لوگ جو اپنا ایڈریس یعنی ان کا کہیں ووٹ جو ہے وہ اپنی جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں پہ نہیں ہے، تو وہ اپنا ووٹ جو ہے وہاں سے منتقل کروانا چاہتے ہیں تو 8300 پہ وہ سب سے پہلے تو چیک کریں کہ ان کا ووٹ جو ہے اپنے حلقے میں، اپنے بلاک میں موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے آفس کل 25 تاریخ تک وہ آئیں اور اپنے ووٹ کی درستگی یا منتقلی یا رجسٹریشن کے لیے 25 تاریخ تک ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں میڈیا کی وساطت سے ہری پور کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ 8300 پہ اپنا ووٹ جو ہے وہ چیک کریں، اور اگر ان کا ووٹ جو ہے درست جگہ پہ نہیں ہے تو وہ الیکشن آفس جو ہمارا ہری پور میں ہے تو وہاں رابطہ کریں، اور تاکہ ان کا ووٹ جو ہے بر وقت اپنی جگہ پہ منتقل کیا جا سکے یا ووٹ بنایا جا سکے۔ تھینک یو سر، یہ توسیع کے حوالے سے کیا اس میں اس ڈیٹ میں توسیع ہو سکتی ہے؟ ہاں، ابھی تک ہمارے پاس تو خیر کوئی وہ نہیں ہے،
تو یہ تو کل جب لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد ہی اگر الیکشن کمیشن نے مناسب سمجھا تو اس میں توسیع بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ سکوں کہ کسی اس ڈیٹ میں توسیع کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل، ووٹ کی منتقلی، ووٹ کے اندراج یا ووٹ 8300 پہ میسج کریں اور چیک کریں کہ آپ کا ووٹ آیا کہ اپنے علاقے میں ہے یا کہیں باہر درج ہے. خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مالی بحران سے جڑا ایندھن کا مسئلہ تاحال برقرار ہے، جس کے باعث آج بھی پی آئی اے کی 30 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں. کراچی سے اسلام آباد کی 4 دو طرفہ، کراچی سے تربت کی 2 اور لاہور کی 3 پروازیں منسوخ. اسی طرح کراچی سے سکھر اور کراچی سے کوئٹہ کی 2 طرفہ 4، جبکہ دمام سے کراچی کی پرواز بھی منسوخ ہو گئی ہے. فلائٹ شیڈیول کے مطابق لاہور سے کوئٹہ کی 2، اسلام آباد سے دبئی کی 2 اور وفاقی دارالحکومت سے بھی ابوظہبی کے لیے 2 پروازیں منسوخ ہو چکی. اس طرح اسلام آباد سے گلگت کے لیے 2، اسلام آباد، کوئٹہ اور سکھر میں بھی 2 طرفہ 4 پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں. اسی طرح اسکردو کی بھی 4 پروازیں منسوخ ہوئی. اسلام آباد سے گلگت اور سکھر کے لیے آنے جانے کی 4 اور دوحہ سے اسلام آباد کی پرواز بھی منسوخ ہوئی ہے. ملتان سے ریاض کی PK2 جبکہ دبئی کی 1 پرواز منسوخ کی گئی. شارجہ سے ملتان کی پرواز PK294 منسوخ کر دی گئی ہے. سیالکوٹ سے شارجہ کے لیے 2 طرفہ دونوں پروازیں منسوخ کر دی گئی. پشاور سے ریاض اور شارجہ کے لیے 2 طرفہ 4 پروازیں منسوخ کر دی گئی. اسی طرح دبئی اور ابوظہبی سے پشاور کی پروازیں PK217 PK218 منسوخ کر دی گئی ہیں. آج صبح کاروبار کے آغاز میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر سستا ہوا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے سستا ہونے کے بعد ڈالر 269 روپے کا ہو گیا. گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 269 روپے 12 پیسے کا تھا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج صبح کاروبار کا منفی رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 220 پوائنٹس کم ہونے کے بعد 50,850 پر آ چکا ہے. گزشتہ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 51,070 پوائنٹس پر بند ہوا تھا. آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے آج غوری ویپن سسٹم کی ٹریننگ لانچنگ کا کامیابی سے انعقاد کیا، جس کا مقصد آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی آپریشنل اور تکنیکی تیاری کو جانچنا تھا. لانچ کا مشاہدہ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ، اسٹریٹجک فورسز کے سینئر افسران، اسٹریٹجک تنظیم کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا. کمانڈر ASFC نے آرمی اسٹریٹجک فورسز کی تربیت اور آپریشنل تیاریوں کے معیار کو سراہا، جس کی عکاسی میدان میں ویپن سسٹم کی مہارت سے ہیلڈنگ اور آپریشنل اور تکنیکی مقاصد کے حصول سے ہوتی ہے. انہوں نے پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت میں اضافے کے لیے سائنسدانوں اور انجینئرز کی خدمات کو بھی سراہا ہے. پاکستان نے آج غوری ویپن سسٹم کی ٹریننگ لانچنگ کا کامیابی سے انعقاد کیا ہے، جس کا مقصد آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کی آپریشنل اور تکنیکی تیاری کو جانچنا تھا. لانچ کا مشاہدہ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ، اسٹریٹجک فورسز کے سینئر افسران، اسٹریٹجک تنظیم کے سائنسدان اور انجینئرز نے کیا. کمانڈ ASFC نے آرمی اسٹریٹجک فورسز کی تربیت اور آپریشنل تیاریوں کے معیار کو بھی سراہا. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں راولپنڈی میں موجود اپنے سینئر رپورٹر علی اصغر بھٹی سے. جی علی اصغر، بتائیے گا. اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے سینئر رپورٹر راولپنڈی سے علی اصغر بھٹی سے. جی علی اصغر، بتائیے گا.
علی اصغر بھٹی سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے آج غوری ویپن سسٹم کی ٹریننگ لانچنگ کا کامیابی سے انعقاد کیا ہے، جس کا مقصد آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے آپریشنل اور تکنیکی تیاری کو جانچنا تھا. لانچ کا مشاہدہ کمانڈ آرمی اسٹریٹجک فورس کی قیادت میں ہوا. اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں راولپنڈی سے رپورٹر علی اصغر بھٹی سے. جی علی اصغر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. علی اصغر بھٹی، کیا آپ ہمیں سن پا رہی ہیں اس وقت؟ کہ پاکستان نے گوری ویپن سسٹم کی ٹریننگ کا لانچنگ کا کامیاب انعقاد کیا، جس کا مقصد آرمی اسٹریٹجی فورسز کمانڈر آپریشن اور تکنیکی تیاری کا جائزہ لینا تھا. لانچنگ کا مقصد کمانڈر سے اے ایس ایف سی اسٹریٹجک فورسز کے سینئر افسران، اسٹریٹجک تنظیم، سائنسدانوں اور انجینئروں نے کیا. کمانڈر اے ایف سی اور آرمی اسٹریٹجی فورسز کے تربیت یافتہ اور آپریشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا، جس کا عکس میدان میں 25 سسٹم کی مہارت کا جائزہ لینا تھا. آپریشن کی تکنیکی کا مقصد حصول کے لیے انہوں نے پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں میں اضافے کے لیے سائنسدانوں اور انجینئر کی خدمات کو بھی سراہا گیا. صدر وزیر اعظم اور پاکستان کے سی ایس سی اور سروسز کے چیف تربیت کی لانچنگ کے کامیاب انعقاد پر پاک فوج کے سائنسدانوں اور انجینئروں کو مبارکباد دیجیے. جی بہت شکریہ علی اصغر بھٹی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ سکھر سول اسپتال پہنچ گئے. شعبہ حادثات، ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ، یورولوجی ڈپارٹمنٹ کا دورہ بھی کیا. ناقص کارکردگی پر ایم ایس سمیت پورے بورڈ کو معطل کر دیا. شعبہ حادثات میں آکسیجن اور بستروں کی کمی پر اسپتال انتظامیہ پر کافی برہمی کا اظہار بھی کیا. اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر الطاف اوان، ڈائریکٹر فائنانس ظہیر عباس بھٹی سمیت پورے بورڈ کو معطل کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اسپتال کی 5 سالہ فورنزک آڈٹ کا بھی حکم دیا گیا. نگراں وزیر اعلیٰ نے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ اور کچن کا دورہ بھی کیا. ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ایم آئی آر اور سٹی سکین مشینری کے خراب ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے سیکرٹری ہیلتھ کو 15 روز میں مشینریاں ٹھیک کرانے کی ہدایت بھی کی. کچن کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کچن کو بہتر کرنے کا حکم بھی دیا. اس موقع پر نگراں ہوم منسٹر سندھ حارث نواز، سیکرٹری ہیلتھ، ڈی جی ہیلتھ اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موقع پہ موجود تھے. رانی پور میں ہفت زبانی صوفی شاعر حضرت سچل سرمست کا روزہ زبوحالی کا شکار ہے. کسی بھی وقت درگاہ زمین بوس ہونے کا خطرہ بھی ہے. کسی بڑے نقصان کا خدشہ ہے. اس پر مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عرفان بروہی سے. جی عرفان بروہی، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل، سندھ کی عظیم شاعر حضرت سچل سرمست کی مزار زبوحال کا شکار ہے. زائرین سے بات چیت کریں گے مزید اس کے حوالے سے کیا کہنا ہے. پرانی درگاہ بنی ہوئی ہے، ابھی جو لوگ مسافر باہر سے آتے ہیں ان کو جان کو خطرہ ہے. یہ سالوں سال میں آتے ہیں، صرف چادر چڑھا کے چلے جاتے ہیں، ہم بنائیں گے، یہ کریں گے. ابھی دیکھو یہ بالکل گرنے کے پاس آ گئی ہے، ٹوٹی ہوئی، ہر جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے. مہربانی کر کے ان کو بنائیں تو تاکہ جو لوگوں کا نقصان ہو وہ مرنے سے بچ سکے. بڑی مہربانی آپ کی. یہاں پہ سندھ میں کچھ دیر پہلے جو ہے بارش آئی تھی، بہت بارشوں کی وجہ سے جو ہے حضرت سچل سرمست کا روزہ مبارک ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گیا ہے. ہماری سندھ حکومت سے یہی اپیل ہے کہ اس روزے مبارک کا جو تعمیراتی کام ہے وہ جلد سے جلد شروع کیا جائے، تاکہ یہاں سے جو دور دور سے لوگ آتے ہیں ادھر دعا پڑھنے کے لیے وہ اپنا سکون حاصل کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جالی مالی یہاں پہ نقصان ہو جائے. ہماری پھر بھی سندھ حکومت سے یہی بار بار اپیل ہے کہ درگاہ سچل سرمست کا جو روزہ مبارک ہے وہ دوبارہ سے بنوایا جائے. مہربانی. سندھ حکومت کے چاہیے سچل سرمست کی مزار کی مرمت کی جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عرفان بروئی، کوہ نور. سید پور کے نواحی علاقے معزز سلطان پور میں قبضہ مافیا متحرک خاتون کے گھر قبضہ مافیا کا دھاوا توڑ پھوڑ کر کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا. متاثرہ خاتون بطول بی بی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. متاثرہ خاتون نے الزام لگایا کہ ملزمان نے گھر کا سارا سامان چوری کر کے اس کے 12 سالہ بیٹے کو بھی
अगवा कर लिया है। मुतासिरा खातून मदद के लिए किसी मसीहा की मुंतजर भी है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद जावेद से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सीतपुर के नवाई इलाके मौजा सुल्तानपुर में मौजूद हूँ। मौजा सुल्तानपुर में एक खातून के घर में असले के जोर पर जो है ना कीमती जेवरात और माली जो उनके जमा पूंजी है वो भी उठा ली गई है। असले के जोर पर उसके जो 2 कनाल का रकबा है उस पर भी कब्जा कर लिया है और उसके बेटे को भी जबरदस्ती असले के जोर पर उठा लिया गया है। इस वक्त मेरे साथ खातून मौजूद है, मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम बतूल में है, मेरे घर वाले का नाम बिलाल है, मेरा 2 कनाल जमीन है, अफजल अजमल अकरम मेरी जमीन पर कब्जा कर ली। 2 डींदा मेरा बच्चा गुमरा है, पता नहीं मार दिते ने या जींदा है। मेरे को पोतरी वापसी मिला वजे, मेरा प्लाट ही मेरा वापसी मैं तो बल्ला मेरे को घर ही आवांडे में। थाना मेरा सीतपुर है, तहसील अलीपुर DSB गिनो IG पंजाब गिनो। मेरे को इंसाफ भी मिला वजे। मेरा 2 डींदा पोत्र गम में मेरे को घर नहीं आवाने दे। मेरी वडेरी घर है, पता मर गई है या जींदी है, मेरे को है तो आवाने में। मेरा पोत्र दा मेरे को पता कहीं मर गए या जिंदा मुर्दा है जड़ है, मेरे को वापसी मेरा करें। मेरे प्लाट मेरे को आवाने में, मेरे को घर ही नहीं आवाने दे। दूजा डी है मैं बाहर वदियां थी जावें दिया डंड के सोटे चाहिए तो बलियम दिन अफजल अजमल असलम अकरम ए मेरे को खुद मेरी गोल है चने मेरे को मरे मेरे को घर नहीं आवाने दे। कि आपने मुतासरा खवातीन से सुना, उनका कहना था कि मेरा जो रकबा है वो मुझे वापस दिया जाए और जो मेरा 2 दिन से इन जालिमों ने बच्चा अगवा किया हुआ है, जिंदा है या मुर्दा है, वो मुझे वापस किया जाए। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने डेरा बखा और मुल्हिका इलाकों के बाजारों का अचानक से दौरा किया। उन्होंने दुकानों, रेडियों और दीगर कारोबारी मराकज में जाकर अशियाए खुरोनोश की क्वालिटी और नर्ख भी चेक किए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जवेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बारपुर से उन्होंने डेरा बक्का और मलिका इलाका जात के बाजारों का अचानक दौरा किया। उन्होंने दुकानों, रेडियो, दीगर कारोबारी मरकज़ में जाकर एशिया खुदनोश की क्वालिटी और नर्ख चेक किए। उन्होंने कहा कि नर्ख नामे नुमाया जगह पर आवेजा किए जाएँ। मुकर्रर करदा नर्खों के मुताबिक फल, सब्जी और दीगर एशिया खुदनोश की फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समराज से अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी इक़दाम बुरकर लाए जाएँ। मसनूई महंगाई करने वाले नासर को हौसला अफजाई की जाएगी। कैमरामैन खुरम इस्ताद के साथ फजल जवेद खान। करोड़ लालीसन में करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाने वाला वसू स्टेडियम हुकूमती अदम तवज्जो के बायस बूथ बंगले में तब्दील हो गया। फुटबॉल ग्राउंड में कांटेदार झाड़ियों के बायस खिलाड़ियों को खेलने में शदीद मुश्किलात का सामना है। स्टेडियम में कमरे टूट फूट का शिकार हैं। कीमती अशिया किसी भी वक्त चोरी होने का खदशा है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं स्टेडियम के इस हवाले से आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, करोड़ लाल ईसन में शहरियों की सैर व तफरी के लिए कोई भी पार्क इस वक्त मौजूद नहीं है, जबकि करोड़ लाल ईसन का वाहिद इकलौता स्टेडियम जो है वसो स्टेडियम भी इस वक्त तबाहाली का शिकार हो चुका है। यहाँ पर जो खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिए मैदान बनाए गए थे, यहाँ पर जो फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया था, इस वक्त वहाँ पर जो है कांटेदार झाड़ियाँ जो है वो पैदा हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शहरियों की सैर तफरी के लिए यहाँ पर जो लगाए गए बेंचेस थे, जहाँ पर शहरी जो है शाम के औकात में आकर सैर तफरी करते थे, वो बेंचेस भी जो है अब टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। और यहाँ पर जो बड़ी इमारत है, जो स्टेडियम की इमारत बनाई गई थी, वहाँ पर जो कमरे हैं वो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कमरे हैं ये नशइयों की अमाजगाह बन चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने यहाँ पर जो मुतलका इंतज़ामिया है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है और दीगर जो मुतलका महकमे हैं, उनसे ये मुतालबा किया है कि इस स्टेडियम में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो स्टेडियम है जिसकी हालत ज़ार जो है आपके सामने है। यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ जो है वो सामने दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो शहरी हैं उनका कहना है कि यहाँ पर ये जो स्टेडियम है ये इस वक्त भूत बंगले का मंजर पे। फलस्तीन पर इसराइल की तरफ से गजा में मुसलसल बमबारी, मसाजिद और बच्चों को शहीद करने और वहां पर खुराक, अद्वियात और ईंधन की तरसलात पर पाबंदी लगाने पर जनरल सेक्रेटरी बार हाफिज कैसर ने शदीद मजम्मत की है। इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। मजीद तफसीलात उनसे लेंगे।
जी बिल्कुल मौजूद हूँ शोरकोट बार में। आपको बताता चलूँ कि शोरकोट बार में अभी आज वकला ने स्पेशली तौर पर जो फलस्तीन पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, उसके लिए स्पेशली यहाँ पर हाफिज कैसे साहब जो सेक्रेटरी हैं शोरकोट बार के, उन्होंने उसकी सख्त मजम्मत भी की है। मेरे साथ सेक्रेटरी मौजूद है। साहब बताइएगा कि जिस तरह फलस्तीन में जुल्म सितम और बर्बरियत इसराइल जो बर्पा किया हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीइंग सेक्रेटरी, मैं शोरकोट बार की तरफ से इसराइल के इस एक्ट की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। इसराइल का जो फ़लस्तीन के स्कूलों पर, मसाजिद पर, हस्पतालों पर और मासूम जानों का मतलब शहीद होना हैवी तादाद में पूरी भरपूर अंदाज में कंडेम करते हैं उसके इस एक्ट को, और पूरी उम्मत मुस्लिमा अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है और पूरे इस्लामी ममालिक से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि फ़लस्तीन भाइयों के साथ, अवाम के साथ शोल्डर टू शोल्डर उनका साथ दिया जाए और उनकी हमायत की जाए। असल बताइएगा हुकूमत पाकिस्तान को आप क्या कहेंगे? एक लीगल लॉयर भी हैं, क्या हमारी इखलाकी समाजी मजहबी हमदर्दी उनके साथ हैं? क्या कानूनी तौर पर भी उनके साथ हमें किस हद तक जाना चाहिए? जी, रियासत पाकिस्तान को अपना सफारती सतह पर भी कंडेम करना चाहिए और आलमी अदालत में भी जाना चाहिए इनके अगेंस्ट। इसराइल के साथ मतलब शदीद अल्फाज में आलमी सतह पे मजम्मत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जितने भी रियासती सतून है उनको भरपूर तरीके से हुकूमती इदारों को फलस्तीन पे जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं इसराइल की मजम्मत करनी चाहिए, यूएन में जाकर स्पेशल करारदाद मंजूर करवानी चाहिए कि वहां पर। आगे बढ़े, आपको बताएं सरगोदा शमाली में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की वारदात हुई। गैरत के नाम पर बहन को दोस्त समेत फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक आदिल परवेज ने अपने कजन कासिम के साथ मिलकर बहन और उसको मिलने आए आशना को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। घोट की रेहड़की में साइंस सतरामदास का 3 रोजा जन्मदिन मेला मनाया जा रहा है। मेले में शिरकत के लिए मुल्क भर से हिंदू यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राजेश कुमार से। जी राजेश कुमार, बताइएगा इस हवाले से। जी, रेड़की में साईं रामदास साहब का 3 रोज़ा जन्मदिन मेला मनाया जा रहा है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से बड़ी तादाद में ज़ायरीन आए हुए हैं। यहाँ पर ज़ायरीन अपने मुर्शिद का दीदार करके इबादत करते हैं और दुआएं मांगते हैं। आइए इनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सच्चे सतराम की दरबार में राठी साहब में आए हैं, बहुत सुकून आता है। लोग दूर दूर से आकर इधर से सुकून लेते हैं और बंदगी करते हैं। मेले में शरीक होने के लिए बच्चों औरतों के साथ हर कौम के हज़ारों ज़ायरीन आए हुए हैं और मेले में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है जो 3 रोज़ों तक जारी रहेगा। अगर दरबार की बात की जाए तो दरबार को भी बहुत खूबसूरत जगह सजाया गया है। अब रुख करते हैं कंदकोट का, जहां पर काश्तकारों को सही रेट ना मिलने पर दर्जनों किसानों ने जमात इस्लामी के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। घंटा घर से डीसी चौक तक एहतजाजी रैली भी निकाली जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे जमालुद्दीन चाचड़ से। जमाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में। कंदकोट में धान की फसल पककर तो तैयार हो गई है और मिल मालकान और अनाज मंडी के जो व्यापारी है, जो आबादगारों को सही रेट ना देने पर जमात इस्लामी की जानिब से और आबादगारों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है सवाल। जी सर, क्या कहना है आपका? पहले तो जब अनाज पकता है तो ये बेवकारियों की लालच और इनकी जो स्मगलिंग की वजह से जो धान 2000 में मिलता है वो 4000 में आबादगारों को देते हैं। जो दवाएं इस्तेमाल होती है वो डबल रेट पे होती है, लेकिन जब धान पक जाता है तो उनका रेट गिर जाता है और जब ये धान मिल मालकान और गोदाम मालकानों के पास जाता है तो आसमान छूता है। हमारे साथ ये जुल्म और नाइंसाफी बंद की जाए। हमें आज ये एहतजाजी मुजाहरा धरना डीसी साहब के ऑफिस के आगे दे रहे हैं। अगर हमारा तदारुक ना हो तो ये दौर धरना डीसी साहब के ऑफिस के आगे होगा। जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जिला में हारी आबादगार बेचारे वो 6 महीने अपने खेतों में काम करते हैं। इस उम्मीद के साथ ये फसल जब पकेगा फिर हम इसको मंडी में ले जाएंगे, वहीं हमें पूरा जो अजर इसका मिलेगा और पूरा हमें हक मिलेगा।
लेकिन आप देखते हैं यहाँ मंडी में जब वो फसल लाते हैं, अपने अनाज लाते हैं, तो यहाँ एक माफिया मौजूद है इंतजामिया की तरफ से। मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का 76वां यौम तसीस डिवीजनल हेडक्वार्टर पर भरपूर जोश व जज्बे और मिली बेदारी के साथ मनाया गया। डिवीजनल और जिले इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम मरकजी परचम कुशाई की तकरीब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सब्जादार पर मुनक्किद की गई। ठीक 8:58 पर सायरन बजाए गए, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और ट्रैफिक रुक गई। कमिश्नर चौधरी शौकत अली, DIG सजाद हुसैन चौधरी और डिप्टी कमिश्नर यासर रियाज ने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के परचम कुशाई की तकरीब में हिस्सा लिया। कसूर में बुनियादी मरकज़ सेहत ग्रीन कोट में अमला और CEO की गफलत छुपाने के लिए मेडिसिन को आग लगा दी गई। मेडिसिन को ज़ायदुल मियाद होने पर तोड़ों में रखा गया, जिनको आग लगाई गई। जलाई गई मेडिसिन में गोलियां और शरबत साफ नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ तिबी माहिरीन के मुताबिक ज़ायदुल मियाद मेडिसिन की रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट को अरसाल की जाती है और इसको SOPs के तहत तल्फ किया जाता है, जबकि शहरियों का कहना है कि अवाम अस्पतालों में मेडिसिन ना होने का शिकवा करते हैं और दूसरी तरफ लाखों की मेडिसिन एक्सपायर हो रही है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर शेखुपुरा में गली मोहल्लों की टूट फूट और सफाई सुथराई के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग मोहल्ला अहमदपुरा में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी महमूद बेग, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? आज बिल्कुल कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की खुसूसी हदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा मोहम्मद अरशद और उनकी टीमों ने शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाला से सर्वे करना शुरू कर दिए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मोहल्ला अहमदपुरा में, जहां पर चंद दिन पहले जो है वो सड़क तो बनाई गई है, एक गली भी बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर जो गटरों के ढक्कन नहीं लगाए गए और गंदगी जो है वो नालियों में अटी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन जो है वो परेशान है। हमारे साथ यहाँ के एक मकीन मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनको क्या मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गली तो बन गई माशाल्लाह, लेकिन नाले उंज भरे ने ਤੇ ਨਾਲੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਾਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। आज बिल्कुल जैसा कि उनका यही कहना है कि सफाई सुथराई के जो कामों के दावे किए गए हैं वो अभी तक अधूरे हैं। और अगर बात की जाए शहरी हदूद के अंदर तो कौमी शाहराहों के इर्द गिर्द जो है कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर की जानब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमला को सफाई सुथराई के हवाले से हदायत तो की गई हैं, लेकिन अभी तक सफाई सुथराई को फाल नहीं किया गया। ज़रूरत इस अमर की है कि जो मकीन है वो कूड़ा करकट कौमी शाहराहों पर ना फैले, ताकि सफाई सुथराई जो है उससे लोगों को फायदा हो। सुई गैस मांगा स्टोर से चोरी शुदा करोड़ रुपए मालियत का सामान चोरी करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ मैनेजमेंट की जानिब से महकमाना इंक्वायरी का हुक्म। डिप्टी चीफ ऑफिसर मांगा स्टोर शहजाद यूसुफ को फौरी सीट से हटा दिया गया। उसामा सलीम डिप्टी चीफ इंचार्ज मांगा स्टोर तैनात कर दिए गए। करोड़ों रुपए मालियत का सामान चोरी कैसे हुआ, किसने किया और काले धंधे में कौन कौन शामिल है, महकमे की जानिब से बड़े पैमाने पर इंक्वायरी करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली की इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का सबसे बड़ा मांगा स्टोर यार्ड है। यहाँ सुई गैस का करोड़ों रुपए मालियत का मटेरियल और सामान मौजूद है। सुई गैस के तमाम दफातर मांगा स्टोर से अपनी जरूरत के मुताबिक सामान वसूल करते हैं। सामान वसूल करने के लिए बाकायदा तौर पर महकमा के अफसरान की जानिब से अप्रूवल ली जाती है और गेट पासिस बनाने के बाद सामान को मुतलका दफ्तर में पहुंचाया जाता है। गुज़श्ता चंद रोज कबल महकमा सुई गैस के मांगा स्टोर से चंद मुलाजमीन की मिली भगत से तकरीबन 9 से 10 करोड़ मालियत का सामान चोरी किया गया, जिसमें महकमा सुई गैस की पाइपलाइन और भारी मिकदार में तांबा भी शामिल था। महकमा मुलाजमीन ने चोरी शुदा सामान से बड़ी गाड़ी
दफ्तर अमले से मिलकर मांगा स्टोर से बाहर निकाली, जो कि बाद अज मिस्री शाह के इलाके से स्क्रैप के भाव बेचने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान CIA इकबाल टाउन ने खुफिया इतला पर छापा मारते हुए मौका पर करोड़ों का माल जब्त कर लिया और मुलाजमीन को भी गिरफ्तार कर लिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मांगा स्टोर में मौजूद मुलाजमीन जो अरसा कई साल से अपनी मुंतखब सीटों पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नजर आते हैं और अपनी गैर मामूली इंक्वायरी के बाद अपनी अपनी सीटों पर विराजमान हैं। महकमा सुई गैस में चंद एंड बैलेंस न होने की वजह से दर्जनों मुलाजमीन भारी सिफारिश और असर व रसूख के बायस अरसा 10 साल से भी जायद एक ही मुंतखब करदा सीट पर कायम। कमिश्नर लाहौर व DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं। इलामा इकबाल टाउन में कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर 20 अमलाक सरे बमहर कर दी गई। आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर व DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं। इलामा इकबाल टाउन में कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर 20 अमलाक को सरे बमहर कर दिया गया है। अपडेट करते चले आपको कि कमिश्नर लाहौर व DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं। इलामा इकबाल टाउन में कमर्शलाइजेशन फीस की अदम अदायगी पर 20 अमलाक सरे बमहर कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर व DG-LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर LDA टीमों की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां जारी हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के ऑफिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स अफेयर्स के तहत फॉल सेमेस्टर में दाखिला लेने वाले नए तलबा के एजाज में शानदार इस्तकबालिया तकरीब फेस्टिवा का एहतमाम किया गया। तकरीब के इफ्तिताह रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर तकरीब में फलस्तीन से इजहार यकजहती भी किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के ऑफिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स अफेयर के तहत फॉल सेमेस्टर में दाखिला लेने वाले नए तलबा के एजाज में शानदार इस्तकबालिया तकरीब फिस्टा का एहतमाम किया गया। तकरीब का इफ्तिताह रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल UMT प्रोफेसर आबिद शेरवानी, हेड OPA अली मुख्तार, डीन्स, डायरेक्टर्स और तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। UMT ने कनेक्टेड के UMT मीटावर्स लॉन्चिंग के हवाले से डेमो पेश किया, जिसे शुरा ने खूब सराहा। UMT पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने मीटावर्स पर खुद को मुतारफ कराया है। डायरेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा ने तकरीब से खिताब करते हुए नए आने वाले तमाम तलबा को UMT में खुश आमदीद कहा और बताया कि UMT पाकिस्तान की नंबर 1 निजी यूनिवर्सिटी है। इनका कहना था कि UMT अपने तलबा को इनमें छुपी हुई सलाहियतें तलाश करके मुस्तकबिल के लीडर्स बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है। UMT निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी अपने तलबा की हौसला अफजाई करती है। डॉक्टर आसिफ रजा ने तलबा को नसीहत की कि वो तालीमी सरगर्मियों को बखूबी सर अंजाम दें, क्योंकि वो मुल्क और कौम का रोशन मुस्तकबिल है। आप जैसे काबिल तलबा के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल है। इस मौके पर हम सब ने फलस्तीन बहन भाइयों को भी याद रखना है। UMT तमाम स्कूल्स और दीगर डिपार्टमेंट्स अपने स्टॉल्स भी लगाए हैं, जहां नए आने वाले तलबा को आगाही फराहम की जा रही है। डायरेक्टर UMT स्टॉल्स का विजिट भी किया। तकरीब में UMT क्लब्स ने बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस भी पेश की, जिसमें नए तलबा को खूब लुत्फानंदोज हुए। तकरीब के इख्तिताम पर डायरेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा ने OPA क्लब के तलबा में इनामात भी तकसीम। SP सिटी ऑपरेशन सुलेमान जफर की हिदायत के मुताबिक लाहौर के इलाके दाता दरबार में नकली सब इंस्पेक्टर असली सब इंस्पेक्टर के हत्थे चढ़ गया। सब इंस्पेक्टर की वर्दी में मलबूस मुलजिम ज़िशान दाता दरबार के गिरदो नवाह में शहरियों पर वर्दी का रोब झाड़ रहा था। शिकायत मिलने पर मुलजिम को मौके से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया है। अपडेट करते चले आपको कि SP सिटी ऑपरेशन सलमान सफर की हिदायत के मुताबिक लाहौर के इलाके दाता दरबार में नकली सब इंस्पेक्टर असली सब इंस्पेक्टर के हत्थे चढ़ गया। सब इंस्पेक्टर की वर्दी में मलबूस मुलजिम ज़िशान दाता दरबार के गिरदा नवाह में शहरियों पर वर्दी का रोब झाड़ रहा था। शिकायत मिलने पर मुलजिम को मौके से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या मामला है और क्या तफसीलात हैं आपके पास? मामला कुछ इस तरह से है कि एक नकली सब इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म पहनकर दाता दरबार की हदूद में शहरियों के ऊपर रोब झाड़ रहा था। जब असली सब इंस्पेक्टर का उसके ऊपर ध्यान पड़ा तो उसको चेक किया गया बाकायदा थाने ले जाकर, तो मालूम हुआ कि ये
दूसरे जिला से जो है वो दाता दरबार के इलाके में आया और ये शहरियों के ऊपर रोब जा रहा है। मैं बताता चलूं कि जब मेरी बात हुई थी एसएचओ दाता दरबार से, तो उसका कहना था कि ये वो शहरी था जो कि धोबी से किसी पुलिस ऑफिसर की वर्दी वहां से उधारी लेकर पहनकर गाड़ी का किराया चार्ज बच जाए, गाड़ी में बैठकर ये लाहौर आया था और यहाँ पर आके शहरियों के ऊपर रोब झाड़ रहा था। जब असली सब इंस्पेक्टर ने देखा कि नीचे जो है वो प्लास्टिक की चप्पल पहन रखी है, ऊपर सब इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहन रखी है, तो फौरी तौर पर जब इसको चेक किया गया तो इसने अपना इतराफ जुर्म कर लिया और बाकायदा तौर पर इसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी की हिदायत के मुताबिक जो है वो इसको चेक किया गया है, क्योंकि जिस तरह से दाता दरबार की हदूद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे जिला से आए होते हैं, तो वहीं पर जो है वो एसपी सिटी की हिदायत यही है। बहुत शुक्रिया वसीम साबिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर में पोलियो के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर अलहमरा में नुमाइशी तकरीब का इनेकाद किया गया। वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने खसूसी शिरकत करके पोलियो वर्कर्स और फोटो जर्नलिस्ट्स की काविशों को भी सराहा। मजीद इस हवाले से आगाह करेंगे लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुनैद अशरफ, जो इस वक्त वजीर प्राइमरी एंड सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर के साथ मौजूद हैं। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलहमरा आर्ट गैलरी में और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड पोलियो डे की मुनासबत से जो है तकरीब का एहतमाम किया गया है और नुमाइशी तकरीब में मुख्तलिफ पिक्चर्स और मुख्तलिफ स्नैप्स जो हैं वो रूनुमा की गई हैं। डॉक्टर जमाल नासिर ने खुसूसी शिरकत किया, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब के जिस तरह की ये तकरीब का इनेकाद भी किया गया है, क्या मैसेज था इसके पीछे और हेल्थ सेक्टर में किस बेहतरी के लिए क्या काम किया जा रहा है? देखें, बुनियादी तौर पर तो आज ये वर्ल्ड पोलियो डे के हवाले से हम ये तकरीब कर रहे हैं, क्योंकि पोलियो जो है वो अभी तक पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो 3 साल से नहीं केस आया, लेकिन एनवायरमेंटल सैंपल आते रहे हैं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसका मेन मैसेज भी यही है कि अगर हम बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएंगे और उनकी हम वैक्सीनेशन करेंगे तो सेहतमंद माशरा तख्लीक करेंगे, और जब सेहतमंद माशरा तख्लीक होगा तो सेहतमंद पाकिस्तान बनेगा, और जब सेहतमंद पाकिस्तान बनेगा तो हम एक अच्छी कौम के तौर पे दुनिया में उभर सकते हैं। तो बेसिक इसका पैगाम यही है कि हमारी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि हुकूमत तो अपने तौर पे बहुत कुछ कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी कर रहा है, WHO भी कर रही है, यूनिसेफ भी कर रहा है, लेकिन हमारी गुजारिश यही है कि लोगों से कि वो इस बातों को समझें और कोशिश करें कि अपने बच्चों को खुद जो नहीं इनको वैक्सीन वगैरह कराई हुई है या जिनको कतरे नहीं पिलाए हुए हैं उनको खुद लेकर आएँ और हमारा साथ दें, क्योंकि उनके बच्चे हैं। देखें, हम तो कोशिश कर सकते हैं ना एक सेहतमंद कौम बनाने के लिए, तो अपने प्यारों को उन्हें चाहिए, क्योंकि देखें जो बच्चा डिसेबल्ड होता है ना, और माँ बाप के लिए सारी ज़िंदगी का एक अजाब होता है, बहुत बड़ा एक मेंटल ट्रॉमा होता है, तो उससे बचने के लिए चाहिए कि वालिदैन हमारे साथ ताउन करें। सर कितने बच्चों को पिलाए जा रहे हैं पंजाब भर में, पाकिस्तान में? ये जो हमारी जब वैक्सीन शुरू होती है, जो कि अब 25 नवंबर में 27 नवंबर को हो रही है और अफ़गानिस्तान में भी हो रही है, क्योंकि ये जो हमारे ज़्यादातर एनवायरमेंटल सैंपल अफ़गानिस्तान से आते हैं, तो हम इस दफ़ा इकट्ठे एक दोनों शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2 करोड़ 20 लाख के करीब पंजाब में बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर जमाल नासिर की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान समेत ये मुख्तलिफ इलाकों में शहरों में जो है पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। और इस वाले से वालिदैन से यही अपील है कि वो पोलियो के 2 कतरे लाजमी बच्चों को पिलाए ताकि बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचा सकें। जी, पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने का मामला। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा ने निगरान हुकूमत के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ को लाडला प्लस बल्कि इमरान प्लस बनने की मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने पंजाब की निगरान हुकूमत के नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने को भोंडा तरीका करार देते हुए कहा कि अगर ऐसे ही फैसले होने हैं तो अदालतों को ताले क्यों नहीं लगा देते। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी इरफान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हुसनैन, पंजाब की निगरान हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने के मामले पर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा ने रद्द अमल देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ को लाडला प्लस बल्कि इमरान प्लस बनने की मुबारकबाद देते हैं। और उन्होंने पंजाब की निगरान हुकूमत के नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने को भोंडा तरीका करार देते हुए कहा है कि अगर ऐसे ही फैसले होने हैं तो अदालतों को ताले क्यों नहीं लगा दिए जाते। निगरान हुकूमत हर वो काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। निगरान हुकूमत मुजरिमों को रिलीफ देने नहीं बल्कि इलेक्शन करवाने आई थी। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मंजूरी देना निगरान पंजाब कबीना का काम नहीं।
अभी से साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान प्लस के लिए मैदान सजाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया राना इरफान हैदर तफसीलात से आगाह करने के लिए। JUIFA ने मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान पर मुल्क भर में कैंप नस्ब कर दिए हैं। लाहौर में कैंप का इफ्तिताह वहादत रोड मुस्लिम टाउन में मरकजी और सूबाई कायदीन ने किया। लाहौर में 7 मकामात पर कैंप लगा दिए गए हैं। मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अमजद खान, सूबाई सेक्रेटरी इतलात हाफिज गजनफर अजीज और मोहम्मद अबू बकर चौधरी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर मौलाना अमजद खान ने कहा कि JUI मजलूम फलस्तीनी मुसलमानों के साथ है और इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करती है। पाकिस्तानी अवाम फलस्तीनी मुसलमानों के दिल खोल कर ताउन करे। हाफिज गजनफर अजीज ने कहा कि आइंदा हफ्ते हमास की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करेगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से कोरिया के सफीर पार्क की मुलाकात हुई। मुलाकात में तजारत और सेहत के शोबों में दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात के दौरान फलस्तीन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का ये कहना था कि फलस्तीनी गजा पर बच्चों, औरतों और मासूम शहरियों पर इसराइल की बमबारी इंसानियत के असूलों के खिलाफ है। दुनिया फलस्तीनियों पर जारी मजालिम के खिलाफ आवाज उठाए। महकमा एक्साइज की जानिब से जून 2023 से 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगानों को 10% रियायत दी गई है। प्रॉपर्टी टैक्स इंस्पेक्टर्स को करोड़ों रिकवरी करने का टारगेट दिया गया। जोन 4 के इंस्पेक्टर फखर इमाम ने भरपूर मेहनत करते हुए सर्कल में टारगेट से ज्यादा रिकवरी करके हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू में इजाफा भी किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपनी रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी से। जी मुश्ताक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? अगर महकमा एक्साइज टैक्स रिकवरी पर बात की जाए तो टैक्स दहिंदगानों के जो मामलात लाहौर में है, बाकी पंजाब से बेहतर रिकवरी जो शहर लाहौर की है वो इसलिए क्योंकि लाहौर में प्रॉपर्टी जो है बहुत महंगाई पे है और बाकी यानी कि सूबों से बाकी शहरों से ज़्यादातर प्रॉपर्टी लाहौर में मज़ीद महंगी है। इस लिहाज से अगर प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगानों के साथ बात की जाए या उसके टैक्स रिकवरी में बात की जाए तो जून से सितंबर तक जो रिकवरी की गई, जो टारगेट दिया गया, तो इस वक्त हम मौजूद है अली कम्प्लेक्स में। यहाँ इंस्पेक्टर तैनात फखर इमाम साहब है, उनसे बात करेंगे उनका प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के हवाले से क्या कहना है, जून से सितंबर तक इनको क्या टारगेट दिया गया है और इस हवाले से ये क्या कहना चाहिए। जी, आपको कितना टारगेट मिला जून से सितंबर तक? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मेरा जो सर्कल है मैक्लोर रोड सर्कल, इसकी जो टोटल डिमांड है वो तकरीबन 5 करोड़ 90 लाख रुपया, और जो लास्ट ईयर हमने रिकवरी की थी वो की थी 2.5 करोड़ रुपया। इस दफ़ा हमने वो रिकवरी 2 करोड़ 80 लाख रुपए की है। पिछले साल से 30 लाख रुपए प्लस किया हमने, और अब इसके साथ साथ जो है हम लोगों को मज़ीद बिलिंग वगैरह कर रहे हैं और लोग भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम जो है वो इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करें और लोगों को में अवेयरनेस पैदा करें। 30 सितंबर तक गवर्नमेंट ने 10% रियायत दी हुई थी, जिससे तकरीबन 50% लोगों ने फ़ायदा उठाया है और हमारी तकरीबन 50% रिकवरी हो चुकी है। तो इस दौरान कुछ सियासी लोग होते हैं, जब कोई ऐसे लोग सामने आते हैं जो टैक्स जमा नहीं करवाते, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग जो रूटीन में टैक्स अपना जमा करवाते हैं लगे हुए हैं, हमें कोई सियासी प्रेशर नहीं है किसी किस्म का, और लोग अपना रूटीन में टैक्स जमा करवा रहे हैं। तो सितंबर के बाद क्या प्रॉपर्टियाँ सील की जाती हैं जो ना टैक्स दहिंदगान है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? चौधरी साहब, इसमें इस तरह है कि सितंबर तक जो है वो गवर्नमेंट 10% रियायत देती है। उसके बाद जो 30 दिसंबर तक है उसमें गवर्नमेंट सिर्फ 5% रियायत देती है ई-पे के ऊपर। उसके बाद वो रियायत ख़त्म हो जाती है और फिर सरचार्जेज स्टार्ट हो जाते हैं। उस वक्त उस जनवरी फरवरी के बाद जो है वो हम प्रॉपर्टियाँ सील करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को सील नोटिस देते हैं और फिर हम वो प्रॉपर्टियाँ सील करते हैं। जी बिल्कुल, जो टैक्स दहिंदगानों की रिकवरी पर बात हमने की तो इस पर दयानतदार भी मुलाजिम है। जैसा कि आपने फखर इमाम साहब की गुफ्तगू सुनी तो इस हवाले से उन्होंने बताया जो मुझे टारगेट दिया गया था तो हमने टारगेट अचीव किया है और आइंदा मजीद मेहनत करेंगे और मजीद हुकूमत पंजाब की रिकवरी में मजीद इजाफा करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम हड्डियों के बुरबुरेपन पर आगाही सेमिनार का इनेकाद। इस मौके पर प्रोफेसर मजीद चौधरी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर सैयद असगर नकी, प्रोफेसर मोहम्मद मुआइन, शोबा
ऑर्थोपेडिक सर्जरी प्रोफेसर फैसल मसूद, प्रोफेसर ज़हरा इशरत, प्रोफेसर यार मोहम्मद, प्रोफेसर सजाद हैदर, डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, डॉक्टर ममरीज सालिक, डॉक्टर सुहेल नियासी और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबर हैं कोहिनूर में।